Okay, so hello everyone, this is Akshay here, and let us continue with today's week. So today's question name is first of all, it's a easy question. The brute force is a easy one, so writing the optimized one may be a tricky for you. आप भले ड्राइन कर पाए होगे बट कोड लिखना में भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया हो बट ठीक है देखते हैं. सो टुडेस क्वेश्चन नेम इज फाइंड द कॉमन नोड्स इन द टू बीएसटी राइट. हमारे पास दो बीएसटी गिवन होंगे, हमें देखना है कि जो भी कॉमन नोड्स इन द सेंस those nodes should be present in BST1 as well as in the BST2. So we need to return those particular common nodes in the sorted format. As you can clearly see, 4, 7, 9 and 10 are the nodes which are present in both of the given binary search tree. So that is why we have returned that into an array list in the sorted form. Similarly, for second test case, 1, 2 and 3 is present are the nodes that are present in both of the BSTs. That is, those are the common ones. So we have returned that thing. So now we are a very good we have a good understanding that how the input and output test cases are running. How we can do this question? So we can do this question in two approaches. So method one is we need to check, yeah, right, अगर हमारे पास कोई एक tree given है, so what we can do is that we can do any type of traversal in the tree, on the tree, let's say on the first BST, and we will store all the nodes in the hash set. ठीक है, तो हमारे पास एक hash set होगा, उसके पास उनमें values क्या हो जाएगी 0 1 4 7 9 5 and 10. These are the values present in BST1, right? Then we will do any traversal again, either the pre-order, in order or post order. If you do not know how to do pre-order, post order, and in order, then definitely I have made some videos on my binary tree playlist. The link must be coming up here now, and you can go and watch it. ठीक है. फिर third step क्या होगा कि we have to do any traversal again on the second BST, and instead of printing the nodes, we will check if that particular node is present in this set. Why in the set? Because this set is containing all the nodes present in BST. And why we have used set, not any other data structure? Because to just check if the value is present or not, it can be checked in O of 1. So that is why I'm using set. You could have also used to array, right? Okay, so optimize the computation. That's why we use a set here, and then finally adding those common nodes in the array list. So what is the time and space complexity? We will be using traversal, two times traversal. It would be 2 of n, ignoring the constant, it would be O of n. What would be the space complexity? Since we are using a traversal that is in pre or post, so both of any of them takes the time complexity of O of h, and then we are also maintaining a hash set to add to store all the particular nodes in the set. So it would be h plus n, again ignoring the smaller, and coming to the greater complexity, so it would be h would be ignored, and O of n would be the space complexity as well as the time complexity. Now n in the constraint is given you as 10 power 5, right? Let us verify that as well. N is here is 10 power 5, so definitely it is less than 10 per 8, and that is why if you are able to code this solution, this approach will get submitted, right? Let us code this solution, then move back. So please pause this video here, try to code this approach by yourself, and then we can move ahead to the solution. Great, I think you would have able to code this. So let me give a very quick code walkthrough. So we have declared a global variables for hash set and array list. Why? Because we will be using recursion, right, for the traversal of the tree. So that is why instead of passing these two things in the parameter, I have made it global so that every function can access it, right? That's a very basic thing. I hope you will be able to understand that. Then again, we have initialized it in the main function, and then we are calling the two times the in order function. Here I'm using in order. You can use any other traversal, right? So first of all, I'm passing the root once. What it is doing? This is doing nothing but doing an in order traversal, and instead of printing the node, it is adding all the values in the set one. And what is the another traversal is doing? So instead of printing here, it is checking if that particular node is present in this set, then definitely that is a common node we need to add in the answer, and answer.add root.data. And at last we are returning the answer. So that is it. It has already taken 4 minutes. Let us hit the sum button quickly and then move ahead with the optimized one, because that will take a time, little bit of time to explain you with the trial and the code. Okay, so as you can see, the given code or the written code we have written is passed successfully. Let's just cross this icon, and we have done this question, right? So let us move ahead with the optimized one. So the same thing will be done in the C++. I'm not showing the conversion of this brute force technique. Okay, so this is a BST, right? So whenever BST comes in the question, one thing you always need to remember that I've already taught in my BST videos, that BST has a specific property that the in-order traversal of the BST is always present in the ascending order. Let's say let's draw BST here. So BST 6, then the left node is lesser than, so lesser value, and the right node is greater, so let's say greater value, right? If you do in-order traversal, in-order is nothing but left, root, and right. So I'll be visiting 5, then I'll be routing root, and then I'll be visiting right. So definitely you can see then there is a
that is the traversal that is present in the ascending order, right? So what is the algorithm, or what is the sequence of steps that we will be following it here is, so let me just drag my screen here so that you can see all the things. So we will be maintaining two stack here, right? तो हम क्या करेंगे यार, stack one में हम सारे, again we'll be doing in order traversal because तभी ये property होगी हमारे पास valid, right? So we'll be pushing all the left values first of all. In order में क्या होता था, we'll go to left, we'll go to left, and then if it is null then we return, right? So definitely हमारे पास एक while loop होगा जो कुछ काम कर रहा होगा, and then what are the skeleton methods? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये 0 1 और 5 हमारे पास पुश हो जाएगा, राइट? सिमिलरली इस ट्री के लिए क्या होगा, 10 से 7 जाएगा, 7 से 4 जाएगा, राइट? And then it releases the call for 4 7 and 10. So that is why this thing would also be present in a stack as, okay, so I have written it wrong, let me correct it. Yes, now it is correct, right? तो सबसे पहले जो कॉल रिलीज होती है वो क्या, ये वाली लीफ चाइल्ड होगी, राइट? सो दैट इज व्हाई दिस इज प्रेजेंट इन द टॉप ऑफ द स्टैक. सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं यार, इन ऑर्डर में रिकर्सिव स्टैक यूज होता है. सो हम यहाँ पे रिकर्सिव स्टैक ना यूज करके एक्चुअल में एक स्टैक यूज करेंगे. आप अगर आपने कभी इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर का कोड कभी अपने इटरेटिव अप्रोच से किया होगा तो आपको मेरी बातें ज़्यादा मेक सेंस कर रही होगी, राइट? But then again, we are using a stack here to store, to do actual the in order here, right? So once we start from 5, so 5 goes to the stack and then goes to 1, 1 goes into the stack and then 0 goes into the stack, right? We'll have a while loop. I don't know what is the terminating condition as of now. Let's just do some dry run. The crux here is, the logic here is that we need to compare the peak values of from the two stacks, right? And what we'll be doing, that if the values are equal, right, as of now it is not equal, but if it is equal then definitely we know that is a common node. We will remove from both of the stack, right, and we will move towards the right. Why right? I'll explain it to you. Let me explain you some two more steps. So if the value, if let's say peak element is 0 and peak element here is 4, right, so we will be removing the smaller values. Why? Because if I remove the smaller values from here, then definitely we can move in the right hand side of that smaller node value, in hope that we'll get a higher values, because right hand side में हमारे पास बड़ी values होती है, right? So that's what I will remove the smaller one and move in the right hand side to find the higher values node to compare. Higher value कहाँ मिलेगी, रोड में. तो मतलब हम 0 को बाहर निकालेंगे और इस 0 के राइट में चले जाएंगे, ठीक है? तो इसके लिए आप समझो, अगर इक्वल है तो हम क्या करेंगे, रिमूव फ्रॉम बोथ हैंड साइड एंड मूव टू द हायर साइड. दैट इज राइट, ठीक है? अब यहाँ पे राइट क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि हम इन ऑर्डर कर रहे हैं, राइट? तो हम सबसे पहले लेफ्ट नोड्स को ऑलरेडी हैंडल कर रखा था हमने, पर डेफिनेटली एक ही ब्रांच बचा जो हम मूव करेंगे, राइट? ठीक है, ये तो हो गई जो हम करने वाले हैं. अब एक एक करके देखते हैं कि हर एक पॉइंट पे हमारा स्टैक कैसे बिहेव कर रहा है, तो हमें ज़्यादा मेक सेंस होगा, ठीक है? ओके, तो जो भी बात हमने कही उससे पहले एक स्केलेटन कोड लिख ले. क्या हमें सारा लेफ्ट एलिमेंट पुश करना है, राइट? तो मैं यहाँ पे स्केलेटन कोड आपको दिखा देता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, फिर वहाँ से अपन एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करेंगे. ओके, ठीक है यार, तो ये रहा अपना स्केलेटन कोड. तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक एरेस बनाया, एक स्टैक 1 स्टैक 2 बनाया, ठीक है? वाइल कंडीशन मेरे को नहीं पता यहाँ पे भी क्या लिखना है. तो जो हमने स्टैक 1 बनाया था, हमने सारे नोड पुश करना है, राइट? सो इफ द रूट 1 is not equal to 1, then definitely we need to push that particular root 1 and we need to move in the left hand side. Similarly for root 2, तभी हमारे पास जो भी गिवन स्टैक है, जो मैंने भी दिखाया था आपको ट्राई रन में, कि हमारे सबसे पहले जो लेफ्ट जितने भी कॉल्स है सारे नोड्स हमारे स्टैक में आ गए थे, राइट? तो मैं इसको तुरंत से करता हूँ, ये बातें यहाँ लिखते हैं अंदर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें भी समझ में आ रही होगी, आप टेंशन ना लो, धीरे धीरे सब समझेंगे, राइट? ठीक है, तो और स्केलेटन कोड क्या होगा यार, ये देखो, ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सारा पुश कर दिया. अब मैंने क्या बोला था, हम पीक वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, राइट? क्यों करेंगे अभी पता चल जाएगा, ठीक है? बट लेट्स से अभी कर रहे हैं, राइट? तो एल्स इफ कंडीशन लिखेंगे. अब वैल्यूज कब कंपेयर करेंगे, जब हम पीक करने वाले हैं एलिमेंट में स्टैक में से, तो डेफिनेटली स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, राइट? सो दैट इज व्हाई वी आर चेकिंग बोथ द स्टैक इज नॉट एम्प्टी, देन ओनली हम उनमें से पीक करके कंपेयर करेंगे, राइट? कंपेरिजन कैसे होगा यार, या तो डेटा सेम हो जाए, या तो डेटा एक लेसर हो जाए, या फिर दूसरा डेटा बड़ा हो जाए. तो हमने लेस देन इक्वल्स टू का लिख दिया, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने ड्राई रन पे. अब एक्चुअल हम ड्राई रन देखेंगे, ठीक है? ठीक है, तो 0 1 4 है, राइट? तो हमारा लेट्स से यहाँ पे हम कुछ पॉइंटर्स बना लेते हैं. लेट्स से R1 हमारा यहाँ पे क्या है, तो 0 और 4 है, राइट? तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, सारे नोड्स को जब पुश कर दिया तो R1 इज ऑल्सो नल एंड R2 इज ऑल्सो नल, राइट? करेक्ट है, क्योंकि हमेशा ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, रूट 1 नॉट इक्वल टू नल, तो उसके लेफ्ट में जाएगा. एंड देन अगेन ये सारी बातें एल्स इफ में तो नहीं लिखा होगा, राइट? एंड देन अगेन क्या होगा, फिर क्या होगा,
5 पुश हो गया, देन 4 पुश हो जाएगा, देन अगेन 0 पुश हो जाएगा। अब R1 जो हमारा नल हो चुका है, तो ये इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब स्टैक 2 का फिलिंग चालू होगा, स्टैक 2 विल बी गेट फिल्ड। तो उसमें क्या होगा, R1 इज नॉट इक्वल टू नल, बट ये ऑलरेडी नल हो चुका है, सो इट विल कम इन दिस एल्स इफ root 2 is pointing to actually 10, so 10 will be pushed, then 7 will be pushed, then 4 will be pushed, and then root 2 is also equals to null, right? So after the execution of 3 if and then after the execution of 3 else if, हमारा root 1 और root 2 null हो जाएगा, and then we will have this condition कि दोनों empty नहीं है और हमें पिक करके चेक करना है। पिक करके क्यों चेक कर रहे हैं अभी देखो पता चल जाएगा। तो 0 है, राइट। R1 बोथ नल हो चुका है। हमें देखना कि जो छोटा है इनमें उनको बाहर करो, राइट। तो हमने 0 को बाहर कर दिया, राइट, एंड वी मूव टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द 0। तो मतलब 0 के राइट में हम चलेंगे, 0 डॉट राइट। तो 0 डॉट राइट क्या है, वो अगेन नल है। R2 इज ऑल्सो नल अगेन, राइट। और हमें क्या करना है, हमने इसको राइट और हमें इसे राइट मूव करना है। तो हम राइट मूव करेंगे, साथ ही साथ हम R2 को नल भी मार्क करते जाएंगे, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हम हमेशा राइट, क्योंकि हमारा जो इल्सेफ जैसे डिजाइन किया हमने, राइट, अगर हमारा R2 नल नहीं होगा तो डेफिनेटली हम अपने BST1 में ट्रैवर्स नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एडिशनल कोड क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे एडिशनल कोड क्या लिख सकते हैं, मेरे को बस लिखने दो तुरंत से। सो द एडिशनल कोड वी कैन राइट हियर इज कि हम S1 से उसको पॉप करें, राइट, द नोड विच इज स्मॉलर। तो मैंने इक्वल्स टू में लिख दिया, थोड़ा सा फिर से एडिट कर। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया अगर जिसका डेटा छोटा है, जैसे कि यहाँ पे root 1 का डेटा छोटा है, तो root 1 किस स्टैक में प्रेजेंट है, S1 है, तो उसको पॉप करो और राइट मूव कर जाओ, R2 को नल मार्क कर दो। क्योंकि क्यों मार्क किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब हम R1 के राइट साइड में मूव करें इन होप कि हमें कोई ऐसा डेटा मिले जहाँ पे R1 डेटा इक्वल टू R2 डॉट डेटा हो जाए, राइट। ठीक है यार, अभी तक मेरे को लगता है कि थोड़ी थोड़ी बातें को समझ में आने लग गई होगी, बट एक बार कंप्लीट रन हम देखेंगे इस वीडियो में। तो R1 नल हो गया, R2 नल हो गया, राइट। तो ये हो गया हमारा सेकंड इटरेशन। थर्ड इटरेशन में क्या होगा कि अगेन बोथ आर नल, राइट। तो अगेन हम चेक करेंगे अब पीक वैल्यू क्या है, 1 और 4। तो 1 अगेन रिमूव हो जाएगा बिकॉज 1 इज स्मॉलर। तो अब हम R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 डॉट राइट, राइट। तो 1 डॉट राइट एक्चुअली में क्या है, 4। और R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन नल। हम डेलिबरेटली इसको मार्क कर रहे हैं नल बिकॉज वी वांट टू मूव इन द राइट हैंड साइड इन होप कि ये जो R1 का डेटा R2 के बराबर हो जाए। और अगर आप यहाँ पे देखो, इसी की बात मैं कर रहा था यार, अगर आप 1 के राइट में जा रहे हो तो 4 आ रहा है, राइट, और 4 जो है अपने लेस पीक से मैच कर रहा है। अब अगर आप लॉजिकली सोचो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं यार भैया, ठीक है आप बोल तो रहे हो कि राइट में मूव कर जाओ, बट क्यों कर रहे हो आप राइट में मूव, क्योंकि देखो यार, हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो राइट, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, लेफ्ट रूट एंड राइट। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल इंश्योर कर रहा है कि BST में सॉर्टेड ऑर्डर में भी होगा, राइट। तो लेफ्ट तो हमने ऊपर के सबसे पहले इफ और एल्स इफ से मार्क कर दिया था, हैंडल कर लिया था, राइट। तो अगर कोई वैल्यू छोटी है, ये 1 4 से छोटा है, राइट, ये 1 कहीं नोट प्रेजेंट होगा BST1 में, मैं चाहता हूँ इस 1 को मैं 4 की इक्वल कर सकूँ, तो ये वैल्यू खुद छोटा है, मतलब मेरे को एक बड़ी वैल्यू चाहिए। BST में बड़ी वैल्यू कहाँ मिलती है, राइट हैंड साइड में, एंड दैट इज व्हाई वी आर मूविंग दी इनटू द राइट हैंड साइड इन होप कि हमें कोई बड़ा वैल्यू मिले। और देखो अगर प्रेजेंट हुआ वैल्यू तो जरूर हमें मिल जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ हो भी गया, R1 जो है एक्चुअली 4 हो चुका है, राइट। ठीक है, तो अब नया स्टैक कैसे बिहेव करेगा यार, अब मैं देखूंगा कि R1 इज नॉट इक्वल टू नल, राइट। तो मैं सबसे पहले तो इस नोड को पुश करूंगा, तो 5 पहले से था, मैं 4 को पुश कर दिया एंड दिस रिमेन एज इट इज 7 10 7 एंड 4, राइट, करेक्ट। तो अब R1 की वैल्यू क्या होगी, अब मैंने इसको पुश किया, ये कौन सा इफ एल्स एग्जीक्यूट हो रहा है, ये वाला इफ एल्स एग्जीक्यूट हो रहा है जहाँ पे हम लेफ्ट पार्ट को हैंडल कर रहे थे, राइट। तो मैं उसको पुश करूंगा और मैं बोलूंगा कि तुम 4 के राइट में चले जाओ, राइट। तो R1 इज नथिंग बट 4 डॉट लेफ्ट, नॉट राइट, लेफ्ट में चले जाओ, राइट, लेफ्ट में चले जाओ। मैं राइट बोलना बंद कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 4 डॉट लेफ्ट क्या है यार, 4 डॉट लेफ्ट क्या है, 4 डॉट लेफ्ट इज एक्चुअली नल, राइट। एंड R2 वाज आल्सो, R2 तो पहले से नल था ही, नल ही था, राइट। देन अब दोनों हो गया नल, R1 और R2, करेक्ट। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, अब अगेन ये कौन से केस में चला जाएगा, एल्सिफ के केस में, जहाँ पे कंपैरिजन चालू होगा, राइट। अगर दोनों ही नल जा चुके हैं तो डेफिनेटली हमें कंपैरिजन करके देखना पड़ेगा। अब मैं देखूंगा यहाँ पे कि दोनों की वैल्यू सेम है, तो मैं बोलूंगा ठीक है दोनों से वैल्यू निकाल दो, वैल्यू निकाल दो यहाँ से, और ऊपर से आपका जो एक एरे लिस्ट है आप उसमें ऐड भी कर दो, करेक्ट। तो चलो उस पार्ट को हैंडल करते हैं। और तो पहला जो क्या है कि अगर अगर सेम वैल्यू है तो पॉप करो, पॉप फ्रॉम बोथ, पॉप फ्रॉम बोथ। सेकंड इज ऐड इन लेट्स से रिजल्ट, ठीक है। थर्ड इज मूव राइट इन बोथ,
राइट की मूव कर रहा है क्योंकि हम इन ऑर्डर ट्रांसफर कर रहे हैं। जो पहले इफ एल्स है वो लेफ्ट का हैंडल कर चुके हैं। कंपैरिजन हम जहाँ पे प्रिंटिंग डेटा कर रहे हैं, प्रिंटिंग डेटा जहाँ होता है वहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं और हम राइट मूव कर जाएंगे। ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस यार। हम बेसिक सा इन ऑर्डर ट्रांसफर कर रहे हैं, लेफ्ट, रूट एंड राइट। ठीक है, तो मैं इस पार्ट ऑफ कोड को भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। ये देखो, मैंने बोला था ये कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो मैं ड्राइवर पहले दिखा था, कोड बाद में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता समझने में। हमें समझने के पर्पज से सॉल्व कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज वाई इन दिस क्वेश्चन आई एम डूइंग बोथ थिंग्स पैरेलली। ठीक है, सो आई हैव मेड द चेंजेस। व्हाट आर द चेंजेस? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो किसी भी राइट रूट वन डॉट डेटा लिख लो या रूट टू डॉट डेटा, बोथ सेम है, राइट। मैंने यहाँ पे लेट्स से रूट वन डॉट डेटा, दोनों में से उन नोड को पॉप करो। हमने वो सेम थे, वो आगे कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। उनको हटाओ वहाँ से और दोनों में राइट में मूव कर जाओ। क्यों राइट, मैं आपको बता दिया। लेट्स कंप्लीट द ड्राई रन। अभी भी ड्राई रन खत्म नहीं हुआ है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, अब हमारा जो R1 है वो क्या अपडेट हो गया, हमने 4 को हटाया, 4 डॉट राइट। 4 डॉट राइट देखो क्या है यार, 4 डॉट राइट जो है हमारा वो नल है, एंड R2 इज अगेन 4 डॉट राइट, बट दूसरे BST का 4 डॉट राइट यहाँ भी नल है। ठीक है, तो अब ये जो स्टैक है इसमें अगेन कंपैरिजन होगा। अब एल्सिफ के केस जहाँ पे कंपेयर, अब अगेन देखो पीक क्या है यहाँ पे, 5 और 7, इनमें से छोटा कौन है, 5 छोटा है, तो मैं इनको इसको बाहर निकालूंगा, राइट। इसको बाहर निकालूंगा और मैं इसके राइट में मूव कर जाऊंगा। सो 5 डॉट राइट, 5 डॉट राइट इज नथिंग बट 10। देख रहे हो आप, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होते चल रहा है। 0 1 4 हमने हैंडल कर लिया। अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ आवर फर्स्ट BST। 5 और R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज नल अगेन। अब ये 10 है, राइट। वी आर डेलिबरेटली मार्किंग दिस एज नल बिकॉज वी वांट टू मूव इन द R1, राइट हैंड साइड ऑफ द दिस R1, बिकॉज हम चाहते हैं कोई ऐसा वैल्यू हमें मिले जो कभी शायद 7 से बराबर हो जाए, राइट। ओके ओके, सो व्हाट इज माय करंट स्टैक लुकिंग as of now? Current stack is there is no elements here, and then here it is 10 and 7. अब देखो R1 की वैल्यू 10 थी, राइट। सो R1 इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो ये पहले इफ में कैच हो जाएगा। पहले इफ में नॉट इक्वल्स टू नल, पुश द नोड एंड मूव इट्स टू लेफ्ट बिकॉज वी आर डूइंग इन ऑर्डर अगेन। तो मैं सबसे पहले मैं 10 को पुश करूंगा एंड आई विल मूव लेफ्ट। सो R1 इज नथिंग बट 10 डॉट लेफ्ट। 10 डॉट लेफ्ट क्या है यार, 7 है। ठीक है, 7 मार्क कर लेते हैं, और R2 अभी भी नल है, राइट। हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए थे। अब आप देखोगे तो R1 is still again 7, it is not equals to null, right। तो क्या होगा अगेन, इफ केस में कैच होगा और जो 7 है वो पुश हो जाएगा यहाँ पे, एंड आई विल अगेन मूव टू इट्स लेफ्ट। सो R1 इज नथिंग बट 7 डॉट लेफ्ट, एंड 7 डॉट लेफ्ट क्या है यार, नल। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से कंपैरिजन चालू होगा। आप देखो 7 और 7 अब ये इक्वल है, तो इन दोनों को पॉप कराओ और दोनों के राइट हैंड साइड में मूव कर जाओ, राइट। सो R1 इज नथिंग बट 7 डॉट राइट, 7 डॉट राइट। ओके शिट, आपको ये स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, राइट, बट आप ठीक है, एक ही इटरेशन मिस हुआ है। आई होप आप मैनेज कर लोगे। मैं इसको स्क्रीन को मूव करता हूँ, एक सेकेंड। ओके, यस, आई होप दैट इज विजिबल नाउ। सो R1 इज नाउ अपडेटेड टू, R1 इज नाउ अपडेटेड टू 7 डॉट राइट, एंड 7 डॉट राइट। ट्री कहाँ चला गया यार पर, रुको मेरे को ट्री वापस से ड्रॉ करना होगा। तो अपॉलॉजीज यार, मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया है थोड़ा। ये कंप्यूटर थोड़ा प्रॉब्लम का दे रहा है मेरे को। वेल आई हैव ऑर्डर्ड अ न्यू लैपटॉप, तो ठीक है यार, थोड़ा सा बेयर कर लो इस वीडियो के लिए। आ, तो हम यहाँ पे थे, राइट। हम यहाँ पे थे जहाँ पे 10 और 7 दोनों में आ चुका था, करेक्ट। सो R1 वाज इक्वल टू नल एंड R2 वाज इक्वल टू नल अगेन, राइट। सो विल गो इनटू एन एल्स इफ कंडीशन जहाँ पे कंपैरिजन होगा, राइट। सो विल रिमूव फ्रॉम द बोथ एलिमेंट्स both nodes because that's same, and will and move to the right hand side। तो 7 का राइट क्या होगा यहाँ पे, 7 राइट is null again, and R2 7 dot right in second BST it is 9, it is 9, right। am I correct? yes correct। तो R1 का जो 7 dot right था यार, वो भी null नहीं है, राइट। that is also 9, 9 करेक्ट। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले if स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और जो 9 जो है वो पुश हो जाएगा अपने S1 में, राइट। और S2 में कुछ नहीं पुश होगा, राइट। if स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ एंड then else statement will be executed, the first else if condition will be executed because जब 9 पुश हो जाएगा, राइट। जब 9 पुश हो गया तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं लिख ही देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ मैं। R1 इज नथिंग बट 9 डॉट लेफ्ट, तो 9 डॉट लेफ्ट क्या है, नल, और R2 की वैल्यू क्या है, 9, राइट। तो else if एग्जीक्यूट होगा एंड 9 वुड बी पुश्ड हियर, 9 वुड बी पुश्ड हियर। नेक्स्ट इटरेशन में क्या हो जाएगा, R1 जो नल था ही, R2 की वैल्यू हो जाएगी 9 डॉट लेफ्ट। अब 9 डॉट लेफ्ट देखो R2 में देख लो,
मतलब BST2 में इट इज अगेन नल, राइट। यहाँ पे नोड नहीं है, इट इज नल हियर, करेक्ट। ठीक है, अब बोथ नल हो चुके हैं यार। अब देखेंगे अपन कि अगर फिर से सेम नोड है तो 9 और 9 को रिमूव करो, राइट। And if you see that what was the pattern we removed, first we removed 4, then we removed 9, and now we are removing, then we removed 7, and now we are removing 9. So since we are removing, so R1 would be nothing but 9 dot right, and R2 would be nothing but 9 dot right from the second BST. So 9 dot right in the first BST is null again, and 9 dot right in the second BST is null again. It's null again, right? So again we'll move the next of the nodes, because it is again both the R1 and R2 is null, so it will again hit the else if condition as we have written in the pseudocode, and we'll remove the same the nodes because that is same again, right. So R1 here would be nothing but 10 dot right again, and R2 would be nothing but 10 dot right. So 10 dot right in R1 in the BST1 is null, right. So this would be null, but in the R2 10 dot right is 20. Great. तो क्या हो जाएगा, both, so one is pointing to null and second is not pointing null. So the first else if condition will be terminated, executed, not terminated. ये जो है first else if condition execute होगा, right? And 20 would be pushed. 20 would be pushed, right? So let us push 20. So the first stack is empty and second stack is having the one value, that is 20. Now what is the updated value again? So R1 is again null and R2 is nothing but 20 dot left. Correct? 20 dot left here is null again. 20 के लेफ्ट में कोई चाइल्ड नहीं है यहाँ पे. Both value is null and one of the stack is empty, right. And we have written the code since we were peaking, or let's say using the topmost element of the stack, तो दोनों stack में elements होने चाहिए. But here where we have reached the case जहाँ पे दोनों एक stack empty हो चुका है, right. एक stack empty होने का क्या मतलब है कि that you have consumed all the nodes from one BST out of 2. सारे नोट्स खत्म हो गए आपके पास, तभी ये एम्प्टी है, राइट. तो इस केस में हमें क्या करना है यार, जब एक स्टैक एम्प्टी हो गया, देन डेफिनेटली यू हैव ट्रैवर्स्ड वन ट्री कंप्लीटली, यू डू नॉट हैव एनी नोड, तो आगे कॉमन नोड्स आने की भी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, जीरो की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि नोड ही खत्म हो गया एक BST के. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एल्स स्टेटमेंट डालेंगे और वहां पे लिख देंगे ब्रेक. देखो, हमने यहाँ पे एक else डाला, इसका मतलब है मींस वन ऑफ द स्टैक हैज बिकम एम्प्टी एंड वी हैव ट्रैवर्स्ड ऑल द नोड्स ऑफ वन ऑफ द BST. वी डोंट नो व्हिच वन, बट कोई तो एम्प्टी हो गया. हमारे केस में R1 एम्प्टी हो गया था, तो वहां कहेंगे ब्रेक. दैट इज इट. That is it. We have handled each and every case, and I hope I was able to explain you guys from the very scratch with the every possible dry run, right? और आपको समझ में आया हो, ठीक है. एक बार वॉक थ्रू वापस से देख लेते हैं. तो आई डोंट नो एज ऑफ नाउ, ठीक है. तो हमने ब्रेक ऑलरेडी यहाँ पे डाल दिया है, तो वाइल की जगह हम बस इसको इन्फिनिट टाइम चला लेते हैं. कहाँ रोकना है हम ऑलरेडी ब्रेक से हैंडल कर रहे हैं, राइट. कंपाइलर रन करते हैं, एक बार थोड़ा सा वॉक थ्रू देखते हैं. तो फर्स्ट टू इफ और एल्स क्या थे, इन और ट्रैवर्सल के जो लेफ्ट चाइल्ड में पुश करना था, हमने इसके लिए यहाँ लिखा था. दूसरा क्या था कि लेफ्ट चाइल्ड सारे पुश हो चुके हैं, राइट. वी नीड टू प्रिंट द रूट इन ऑर्डर में, बीच का जो रूट पार्ट है हम प्रिंट करते थे, राइट. बट यहाँ पे हम प्रिंट नहीं करना है, हमें देखना है कंपैरिजन करना है, हमें चाहिए कॉमन नोट्स. तो हम देख रहे हैं जो वैल्यू कम है उसको बाहर निकाल दो, उसके राइट में मूव कर जाओ, इन होप दैट यू विल गेट अ लार्जर वैल्यू. और फाइनली ये इफ कंडीशन कभी हिट होगी और दोनों स्टैक से वैल्यू को बाहर निकाल देंगे. ठीक है, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको. वीडियो को बैक करना, नहीं समझ आया तो और एक बार वापस से देखना, जरूर से समझ आएगा, राइट. देन वी हैव एल्स इफ जहाँ पे लेसर वैल्यू वाला केस हैंडल हो रहा है, एंड देन वी हैव अगेन वन इफ जहाँ पे ग्रेटर देन का केस हैंडल हो रहा है. And this is the case where one of the stack has become empty. So that is it. Let us hit the submit button. While it is submitting, what is the time and space complexity? Time complexity is O of n, right? N1 plus N2 you can say, because we are visiting each and every node in both of the BSTs, right? And what is the space complexity? Space complexity is space complexity. What is the space complexity? That we are using a stack, right? Since we are using an iterative method, but if you see at any point of time you are storing the maximum node which is equals to the length of the tree. अगर आप देखो तो हमने क्या 510 स्टोर किया है, राइट. अब इन स्टैक में देख लो, कभी भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पे 3 नोड से हमने ज्यादा स्टोर किया, एंड 3 नोड इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द ट्री इज गिवन, राइट. तो इसीलिए इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा O of H1 प्लस H2, एंड स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा O of N1 प्लस N2. ठीक है,
ठीक है, and since n is 10 power 5, so it would be 2 into 10 power 5, which is less than 10 power 8, and that is why this code got submitted, and this is what was expected by this question as well. ये क्वेश्चन एक अच्छा था यार, अच्छा क्वेश्चन था। अगर हम देखो अमेजोन में पूछा गया, ओके ये अच्छा क्वेश्चन था इफ वी वुड हैव डन विद दिस सेकंड मेथड, राइट। अगेन मैं टीचिंग पर्पस से बता रहा हूँ, इसलिए यार वीडियो बहुत लंबी हो गई, बट ठीक है, आप भी सीखने के पर्पस से ही वॉच कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक दैट वुड बी एन इशू हियर। Okay, let us stop this video here and let us meet again in the tomorrow's streak. Till then, keep learning, keep growing. Bye bye, and take care, guys. Okay, before saying bye bye, so one task is missed. I have not shown the C++ code, so I'll just scroll it down for you to just have a look, because the same thing is happening, the same if and else condition are there as we have done in the Java. So, and do not worry, you will get the source code description in my DSL repository, and you can start and poke the DSL repository for the future references, because it has a lots of code repositories, like more than 400 standard questions it has, right? So, yep. Great, you can take the help from that link as well. I'll mention that link in the description. अब चलते हैं, bye bye, मिलते हैं कल यार, bye.